Hello student, welcome to you class 11 biology class, in which today we will continue our chapter number 4, that is Animal Kingdom. And today we will discuss about our 4 classes, that is Amphibia, Reptiles, Aves and Mammalia. In last video we discussed about the different classes of species. स्पीसीज के अंडर ऑर्डर स्पीसीज में जो हमारी क्लासेस आ रही थी 3 क्लासेस, उनको हमने डिस्कस किया था इन लास्ट वीडियो. टुडे वी डिस्कस अबाउट these 4 classes. Okay, after that we complete our chapter number 4. Now let's start. First one, that is class Amphibia. Amphibia, it is made up of 2 words. First one is the amphi and second one is the bios. Amphi, that means dual or both, and bios, that means life. So these animals have special characteristics, or they show dual mode of living. That means these animals can live on the terrestrial environment as well as aquatic environment. जो एम्फीबियंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? उभयचर. उभयचर यानी ऐसे जीव जो दोनों जगह पर रह सकते हैं. उभय माने दोनों, चर माने रहने वाले. ऐसे जीव जो थल और जल दोनों ही स्थानों पर आसानी से रह सकते हैं, ऐसे जीवों को हम उभयचर कहते हैं और उन्हें हम क्लास एम्फीबिया में रखते हैं. सेकेंड इज स्किन इज मॉइस्ट विद स्केल्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज हेड एंड ट्रंक. These animals have this characteristic. In last video we discussed about the structure of, you remember, blanoglossus, that their body is divided into 3 parts. Now in this class the body is divided into 2 parts, that is head and trunk. You see the frog. Best example of this class is frog. Frog की जो body है वो 2 parts में divide रहती है, head and trunk. Next, eyelids are present. Ear opening is represented by the tympanum. External ears are not present. इनमें external ears just like us. External ears present नहीं होते हैं इनकी बॉडी में, बाह्य कर्ण नहीं present होते हैं. और जो eyelids हैं वो इनमें present होती हैं. आइज के ऊपर जो eyelids हैं वो present होती हैं to save them in the aquatic environment. Next, respiration. Because they are aquatic animals and as well as terrestrial animals, so they respire through both the organs. First one is the lungs and second is the gills. As they remain in the larval stage, they respire through the gills, but as they become adult, they respire through their lungs. जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं, डेट मीन्स छोटे होते हैं, तब वो किस में रेस्पायर करते हैं, किसके थ्रू श्वसन लेते हैं? गिल्स के थ्रू श्वसन लेते हैं. लेकिन जब वो वयस्क हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो वो आपके लंग्स के थ्रू जो है, डेट मीन्स लंग्स के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं. बट समटाइम्स दे हैव ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आल्सो रेस्पायर थ्रू देयर स्किन्स, सो दे आर नोन एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रोसेस. क्योंकि वो लोग जो जीव हैं वो कैसे, वो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. सो दे आर नोन एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी एनिमल्स. नेक्स्ट इज, it is also important point that they have a single opening. Just we have different openings for the different system. Just like digestion system के लिए हमारे लिए क्या है? माउथ है. एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास एनस है. रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स हैं. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हमारे यहाँ डिफर हैं, डेट इज टेस्टिस एंड द ओवरीज. बट in the class of amphibians there are single opening is present through these systems, just like digestion system, excretion system and reproduction system. They have a single opening that is called cloaca. Cloaca कहते हैं उसको हम. Next, it is also important point, they are the cold blooded animals with 3 chambered hearts. That means 2 auricles and 1 ventricle is present in their heart. We are 4 chambered heart, 2 auricles and 2 ventricles. But amphibians, they are 3 chambered heart. They have 3 chambered heart. First one is the 2 auricles and second one is the 1 ventricle. Now term is come here, that is cold blooded. Cold blooded means they change their body according to the environment. They have the capacity or ability
इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये अपने शरीर के ताप को बाह्य वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं। नाउ द एग्स कवर्ड इन ए थिन शेल स्ट्रक्चर दैट ब्रेक डाउन इन सनलाइट। ये भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके जो सबसे पहले ये क्या होते हैं, दे आर द विविपेरस, दैट मीन्स दे ले द एग्स एंड दे एग्स आर कवर्डेड बाय ए थिन शेल स्ट्रक्चर्स। इनके जो एग हैं वो एक थिन शेल से कवर्ड रहते हैं, और उसकी क्या स्पेशलिटी है कि वो थिन शेल अगर सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाती है तो इट विल बी ब्रेक डाउन। सो इसीलिए क्या करते हैं, वो अपने जो एग्स हैं उनको वाटर में ही ले करते हैं, क्योंकि अगर वाटर में ले नहीं करेंगे, टेरेस्ट्रियल लैंड पर वो अपने एग्स को रिलीज करेंगे तो सनलाइट के थ्रू उनके एग्स ब्रेक हो जाएंगे। सो दे हैव ए थिन शेल स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर अराउंड देयर एग्स that break down into the sunlight. Examples क्या हैं इनके? Example is bufo, that is toad. Second one Rana tigrina, that is frog, and hyla, that is tree frogs. In their hind limbs a net-like structure is also found. आपने देखा भी होगा फ्रॉग्स की और या ट्री फ्रॉग्स है तो उनकी जो हिंड लिम्स है, डेट मीन्स उनकी जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उनमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही वो इजीली मूव कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने आप को अटैच कर लेते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्लास, दैट इज द क्लास रेप्टाइला, रेप्टाइल्स। सिमिलरली इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वर्ड दैट इज रैपायरी और रेप्टम। रैपायरी दैट मीन्स टू क्रीप एंड रेप्टम दैट मीन्स क्रॉल। दैट मीन्स in this class those animals comes that have the capability to crawl, that means ऐसे जीव जो रेंग कर चल सकते हैं वो सब इस क्लास के अंदर आते हैं। so we can say they are the most terrestrial animals। इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं they all are mostly terrestrials। second one skin dry and covered with cornified but epidermis bear scales or scutes help in creeping। that means उनकी जो बॉडी है, आप you understand about the structure of chameleon and the lizards you see in your houses, they have scales, some scales in their body or some points like structures is also present on their body, that is called cornified structure, and these structures help them to creep along the any land or any surface। जो उनकी बॉडी पर वो कॉर्निफरस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे जैसी संरचना, उन्हीं की वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज, और उसी की वजह से वो इजीली क्रॉल भी कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। इनकी बॉडी में भी टिम्पेनम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट गिव द अपीयरेंस ऑफ ईयर। नेक्स्ट एग्स हैव थिक शेल एंड ड्राई। आपने देखा भी होगा जो लिजर्ड्स वगैरह हैं या कैमिलियंस वगैरह हैं वो ड्राई प्लेसेस पर भी हैं, और अभी वी डिस्कस अबाउट दैट, और वी कैन से कि वी रीड ए कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट। सो दे lays their eggs on the dry places, dry places सूखे जगह पर ही वो अपने eggs को ले करते हैं, और उनके जो eggs हैं उनके सराउंडिंग थिक शेल होती है। अगर थिक शेल नहीं होगी तो उनके eggs क्या हो जाएंगे, वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, तो इसलिए उनके eggs जो है उनके सराउंडिंग एक थिक शेल होती है। नेक्स्ट दे शो द कैरेक्टर एकिडाइसिस। एकिडाइसिस दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट remove their dead skin from their body। लिजर्ड्स में और स्नेक्स में आपने एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखा, आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में सुना भी होगा कि सांप जो है वो अपनी केचली छोड़ता है, टाइम टू टाइम वो अपनी स्किन को रिमूव कर देता है। तो डेड कैरेक्टर थ्रू विच डेड रिमूव देयर स्किन टाइम टू टाइम इज नोन एज द एकिडाइसिस। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज शो कैमोफिलिटिस, दैट मीन्स दे चेंज देयर बॉडी कलर। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी अपने घरों में भी और बुक्स में भी आपने रीड किया हुआ है, गिरगिट। गिरगिट की क्या स्पेशलिटी होती है कि वो अपना कलर, अपनी बॉडी का जो कलर है उसको चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और जहाँ भी वो बैठता है।
लीव्स पर बैठता है तो ग्रीन कलर लेता है, किसी फ्लावर पर बैठता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है. सो दैट कैरेक्टरिस्टिक through which they change their body color according to the environment is known as the camouflage. Next, they have three chambered heart. Again, like amphibia, they also had three chambered heart, but here in class reptiles exception is there, that is crocodile. Crocodile के अंदर कितना हार्ट होता है? Crocodile has four chambered heart, two auricles and two ventricles. तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैमोफाइलिटिच वाला और आपका जो क्रोकोडाइल वाला है, कि सभी का हृदय कैसा होता है. इस क्लास के जितने भी जीव होते हैं उनका हृदय कैसा होता है? त्रिवेशमी होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. लेकिन अपवाद कौन है आपका? क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के अंदर क्या है? उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लाइक अस, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? टॉर्टोइस, टर्टल, कोबरा, वाइपर, एक्सेट्रास. ओके, नाउ let's move on our next class, that is the class aves. As you know about aves, इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो फ्लाई करते हैं. that means all birds come into this class. aves, they have feathers for flying and beak. वो चोंच रखते हैं अपनी बॉडी में, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? इजिली अपने जो फूड है उसको ईट कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे हैव 4 limbs. आपका एम्फीबियाज में भी पढ़ा हमने और रेप्टाइल्स में भी हम जानते हैं कि उनके पास भी क्या होते हैं? 4 limbs. डेट मीन्स जो फ्रंट लेग्स होते हैं उनको हम कहते हैं 4 limbs, और जो पीछे की तरफ होते हैं दे आर कॉल्ड एज हिंड लिम्ब, अग्रपाद और पश्चपाद. सो in these animals 4 limbs are modified into the wings. इनमें जो 4 limbs होते हैं, that means आगे वाले जो पैर होते हैं वो पंखों में चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनको फ्लाई करना होता है, इसलिए. एंड hind limbs are modified for walking, swimming and clipping the tree branches. because आप सभी जानते हैं ट्रीज किस पर बैठती हैं? आपके ट्रीज बर्ड्स जो है वो किस पर बैठती हैं? ट्रीज पर बैठती हैं और वहीं पर अपना नेस्ट बनाती हैं, एग भी लेग करती हैं वो वहाँ पर. सो दे हैव द स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज द क्लैप्सिंग. दैट मीन्स उनके जो 4 limbs हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि उसी के थ्रू वो किसी भी ब्रांच पर अपने आप को अटैच कर लेती हैं इजीली. नेक्स्ट, दे हैव ऑयल ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल. उनकी जो बर्ड्स की जो टेल रहती है उस पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं विच आर नोन एज द ऑयल ग्लैंड दैट सिक्रेट्स द ऑयल. नेक्स्ट, लॉन्ग बोन्स आर होलो. एज यू नो अबाउट दैट कि बर्ड्स फ्लाई करती हैं. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे हैव द लाइट बॉडी. लाइट बॉडी फॉर व्हाट? लाइट बॉडी फॉर द फ्लाइंग. सो लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी. उनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी लंबी हड्डियां होती हैं जो उनके शरीर के अंदर, वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट हो जाती है और उसी एयर कैविटी की वजह से वो इजीली क्या कर सकती हैं? एयर में फ्लाई कर लेती हैं. और इसी की वजह से उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं. सो द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज एंड सो these birds bones are known as the pneumatic bones. Next, digestive system. It is also an important point that their digestive system have 2 chambers. उनका जो digestive system है birds का वो 2 chambers में या 2 parts में डिवाइड रहता है. First one is known as the crop and second one is known as the gizzard. Crop क्या करता है? Crop का function है to store the food. वो फूड को स्टोर करता है. और गिजर्ड का क्या फंक्शन है? गिजर्ड दैट मीन्स ग्राइंडिंग. वो ग्राइंड कर देता है. जैसे आप मिक्सी में अपने किसी भी सामान को ग्राइंड करते हैं ना, उसको छोटे 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 पीसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इजीली. तो उसी तरीके से जो फूड उसने लिया, आप जानते हैं बर्ड्स क्या कर सकती हैं? बर्ड्स फ्रूट्स भी खाती हैं, बर्ड्स छोटे छोटे आपके जो वर्म्स होते हैं उनको भी ईट करती हैं. तो उनको ऐसे थोड़ी कि इजीली वो डाइजेस्ट कर गई, नहीं, उसको वो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ दिस गिजर्ड.
तो gizzard that grind the food and crow that store the food. Next, they are the warm blooded. Warm blooded, that means they remain, or they have the capability to remain constant their body temperature according to the environment. So they are known as the, क्या कहते हैं हम उन्हें, homeothermos. Okay, I show this term here. It is also known as the homeothermos, or we can say warm blooded animals. They also have 4-chambered heart. That means अब तक हमने जो पढ़ा क्लास एवीज, आपका एम्फीबिया तक हमने क्या पढ़ा था, 3-chambered heart थे. रेप्टाइल्स में भी 3-chambered heart था, लेकिन वहाँ एक्सेप्शन स्टार्ट हो गया था हमारा. डेट मीन्स अब हमारा जो हार्ट था वो कैसा चेंज होना शुरू हो गया था ऑर्गेनिजम्स का, 4-chambered जो हार्ट है उसमें चेंज होना शुरू हो गया था. और इसके एग्जांपल्स क्या है, एनी फ्लाइंग बर्ड्स यू राइट हियर, crow, pigeon, parrot, peacock, etc. extra. One point I want to tell you about that the smallest bird in the world is hummingbird, and flightless less birds are known as the ostrich and kiwi. ऐसी birds जो उड़ नहीं सकती हैं उनका क्या नाम है, शुतुरमुर्ग और कीवी. Due to their heavy body, because they have the heavy body, उनका शरीर बहुत भारी होता है, लेकिन इसलिए वजह से वो उड़ नहीं सकती हैं. बर्ड्स, दे आर बर्ड्स. और सबसे छोटी जो बर्ड्स होती है उसका क्या नाम है, ह्यूमिंग बर्ड्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर लास्ट क्लास, दैट इज द क्लास मैमेलिया. मैमेलिया, हु आर द मैमल्स? यू, यस, वेरी गुड. वी आर द मैमल्स. व्हाई? बिकॉज वी हैव वन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज वी have mammary glands. Mammary glands, what is that? Mammary glands, that means those glands which secretes the milk. Okay, so mammalias, they have mammary glands that secrete the milks. जितने भी स्तनधारी हैं, मैमेलिया डेट मीन्स स्तनधारी. स्तनधारी किन्हें कहते हैं, वो एनिमल्स या वो आपके ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं. और स्तन ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती हैं, दूध का स्त्रावण करती हैं. उससे क्या होता है, दे नरिश देयर ऑफ स्प्रिंग्स. वो अपने चाइल्ड्स को, अपने जो बच्चे होते हैं उनको वो उस मिल्क की थ्रू ही क्या करते हैं, फीड करते हैं. तो इसलिए उनके लिए वो मेमरी ग्लैंड क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमेलिया ग्रुप के एनिमल्स के लिए. दे हैव 2 pairs ऑफ लिम्स. उनमें 2 pairs ऑफ लिम्स होते हैं जो अडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए एंड बोरोइंग, खोदने के लिए भी. ओके, आप जब यू रीड अबाउट द क्लास मैमेलिया, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ हेयर. ओके, यू टच योर स्किन, यू फील दैट हेयर्स आर प्रेजेंट, स्ट्रक्चर, hair like structures present on their your body. So presence of hairs on their body, it is also a special characteristic of mammals. Next, external ears are present which are called pinnae. Okay, external ears present है हमारी body के अंदर. Different types of teeth are present. That means we have incisors, canines, premolars and molars. So we have different types of teeth that play different functions in our digestive system. Next, respiration through lungs. Lungs we have through which we can respire easily. And heart, it is 4-chambered and we are viviparous. That means we give to birth the young ones. हम क्या कर सकते हैं, हम जो मैमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं. हम अंडे नहीं देते. We are not oviparous. We are viviparous. That means we give to right to young ones that are similar to us. Homeothermos, that means we are warm blooded. हम कैसा भी एनवायरनमेंट हो, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं. ज़्यादा सर्दी भी होती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ स्टेबल रख लेते हैं. ज़्यादा ठंड होती है तो भी हम अपने आप को स्टेबल रख लेते हैं. डेट मीन्स वी कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट अवर बॉडी टेम्परेचर, that is 37 degree Celsius. Examples क्या हैं, monkeys, chimpanzees, human, etc. But one important point will come from here. What is that? That is in
class Mammalia, exception is present in the case of Viviparous, that is Periplatus. Periplatus एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, वो बच्चों को जन्म नहीं देता, लेकिन वो अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वो सब कैसी हैं, मैमेलिया ग्रुप के एनिमल्स की तरह ही हैं. तो डेट इज द एक्सेप्शन इन द केस ऑफ Viviparous, that is Periplatus is the only animals that give rise to the eggs, not the young ones. Okay, hope you understand these classes very smoothly and easily. Please read these characteristics, understand these characteristics with one example that you remain in your mind, and then draw this structure in their notebooks. Please learn them and draw them. Thank you so much. Thank you, class.